Hello students, good morning. You know that this is the third class for the chapter first, integers. In that class today we discuss about the properties of multiplication of integer, and these properties should be very useful for the solving exercise 1.3. So for solving exercise 1.3 we have to first start study of the exercise properties of multiplication of integer, and these properties are very important. Just like first property we are given that closure property. Closure property is used in multiplication, division, multiplication, sum, but it is not applicable in all type of calculation in integers. Okay, so now we check this, the closure property is usable or suitable for the multiplication of integers or not. So like here we take any integer -3 and other integer 5, multiply this, you got -15. So -15 is already an integer and 3 is integer, 5 is integer. So here closure property says that if we multiply any two number which are integers, then we also got an integer. So we observe that closure property is used is applicable in multiplication of integer. Like here, just like according to your book, we take example -2 into 5 equal to -10, -11 into -3 is equal to +33. So both are integers now. So similarly we can say that we observe that product of pair of integers is closed under the closure property, under the integers. So we say that for any two integers a and b, a into b is the integer, and if a and b are integer, then a into b is also a integer. ठीक है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, यानी कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर मिलेगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, अब आपके अगले प्रॉपर्टी पर आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी बताई जाती है. तो यहाँ पर देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर हम दो इंटीजर ले लें लाइक -5 एंड 3, तो -5 into 3 is equal to 3 into -5. We got -15. That is first example. -5 into 3 -15, 3 into -5 -15. यहाँ पर नंबर का प्लेस चेंज करने पर भी हमारे आंसर सिंपल है. We can say that the integers are commutative under multiplication. Integers are commutative under multiplication. जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल -3 into -3, -3 9 आ जाएगा, प्लस का 9 होगा. अगर हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल 6 into 5, 6 5 का 30, प्लेस चेंज कर लेते हैं. हमने क्या कर लिया, 5 into -6 कर लिया, वी गॉट -30. बोथ टाइम 6 इज अ इंटीजर, 5 इज अ इंटीजर. मल्टीप्लाई करने पे -30 मिल रहा है इंटीजर, यानी कि यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी लग गई. अब कम्यूटेटिव कैसे हुआ, बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ नंबर्स. यस, -6 into 5 and here 5 into -6. Both time we got same answer. So it is, we say that commutative properties exist in multiplication of integers. Okay, next property है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएट करना, जैसे पिछली बार बताया था कि अगर तीन नंबर है हम लोग एक दूसरे को कैसे एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे को ग्रुपिंग बनाकर के. मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में मैंने तीन इंटीजर्स को ले ली, ये तीन इंटीजर ले ली. अब ये तीन इंटीजर जो हैं मल्टीप्लाई करने पर 6 into 3 into -6, but here making group in that way. Here equal to 6 into 3 into -6. Both time we got 6 is 18 into -6. ठीक है, ध्यान से देखना है आप सबको, कोई कंफ्यूजन जरूर पूछेगा. 6 into -18, 18 6 कितना होता है, 18 6 18 5 19, 18 6 100. So here 100 minus और इधर 100, both time same ना. तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएट करता है. एक फॉर्मूले ग्रुप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ a b and c are three integers, then
a into b into c is equal to a into b into c इन ब्रैकेट, मतलब हम लोग यहाँ ग्रुपिंग कर रहे हैं दो दो नंबर्स का, ठीक है। तो यू कैन से दैट इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बाकी की दो प्रॉपर्टीज और बचती हैं। वो प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी मैंने पिछली बार ही बोला था, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 माना जाएगा, यानी 1 को अगर किसी में मल्टीप्लाई करें, देखिए हम इसको इरेज करते हैं 1 एक सेकेंड। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए पूरा इरेज करके बताते हैं, ओके। तो देखते हैं कैसे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ रहा है? जितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं उसके बाद अगली 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके कैलकुलेशन के लिए, आपके आगे की कैलकुलेशन के लिए, आगे क्लास में भी काम है। जैसे अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? अगर आपके पास कोई नंबर, कोई इंटीजर है, फॉर एनी इंटीजर ए मींस कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में, प्लस में, या 0 भी हो सकता है। तो अगर हम ए में मल्टीप्लाई करें 1 से, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, यानी कि अगर हम एक तरफ 4 ले लेते हैं, 4 into 1 या 1 into 4, you got 4। यही आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है? जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर, जीरो का बड़ा फैक्टर है, देखिए जीरो जिसके साथ टकराएगा, टकराने का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो वो आंसर उसको जीरो कर देगा फॉर एनी इंटीजर, चाहे वो इंटीजर आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या खुद जीरो हो। यानी जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इंटीजर से करने पर जीरो मिल जाएगा। लाइक हियर 3 into 0 equal to 0 into -3, -3 into 0, और 0 into -3 both gives 0। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? जीरो प्रॉपर्टी, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन में भी लगती है और सब्ट्रैक्शन में लगती है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को मैं आगे विस्तार से बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके आप देखिएगा ध्यान से। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर एनी इंटीजर ए बी सी, फॉर एनी इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या जीरो, a into in bracket b plus c is equal to a into b plus a into c, or if we multiply a plus b into c, then c multiply to a ac हो जाएगा, c multiply to b b into c यानी bc, b into c को bc लिख सकते हैं, b into c। after that distributive property over subtraction, a into b minus c is equal to a into b minus a into c। after that a minus b into c is equal to a into c minus b plus c। ये फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी तुरंत मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। एग्जांपल लेते ही आपको ऐसा क्लियर होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक वी टेक एन एग्जांपल, a equal to 3, b equal to 2 and c equal to 5। एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए आपको दिखाना है एडिशन, तो आपका पहला फॉर्मूला a मींस 3 into 2 plus 5 in that formula is equal to 3 into 2 plus 5 into 3। ठीक है, both side 3 into 7 equal to 3 to 6, 5 to 15, 7 to 21, 15 plus 6 21। देखिए सेम मिल रहा है, LHS equal to RHS, यानी LHS equal to RHS मिल रहा है। You can say that integers are distributive over addition। integers are distributive over addition। तो इसको हम क्या लिखेंगे? integers are distributive over addition। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि distributive property of multiplication is over addition। distributive property of multiplication over addition is applicable in integers। so अब दूसरी देखते हैं, दूसरा क्या है? distributive property over subtraction। क्या प्रॉपर्टी का नाम होगा? distributive property over subtraction। ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम कोई तीन इंटीजर a इक्वल टू -2 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3 लेते हैं, c इक्वल टू
5 करेंगे। आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन का a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू दैट। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू -2 है, इसमें रखकर देखते हैं -2 इंटू बी माइनस सी 3 माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है तो इसको हमें ब्रैकेट बना के लिखना पड़ेगा, माइनस क्या लिखेंगे -5 इज इक्वल टू a इंटू बी। a इंटू बी पहले क्या करेंगे -2 इंटू 3, फिर माइनस साइन लगाएंगे और a इंटू डी के बाद a इंटू सी, तो -2 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू -5। सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे -2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। 3 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास -5 -2 -5 हो जाएगा। आफ्टर दैट हियर 2 3 जा 6 -6 माइनस 5 2 जा 10 -2 माइनस प्लस। ओके, अब इसके बाद -2 इंटू 8 इक्वल टू -6 और इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, देखिए फॉर्मूला आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 2 6 जा 8 2 जा 16 प्लस माइनस इक्वल टू -16। यहाँ पर भी आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। अगर राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड आ रहा है इस प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन एग्जिस्ट इन इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। अब आपको एक्सरसाइज 1.3 उसका मैं होमवर्क अभी दे रहा हूं, उसको करना जरूर, ठीक है सभी बच्चे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।